ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ 10% कद्दे में देना 90 है गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी बेटी गुरु जी अमृतसर से बोल रही हूँ गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्लीज़, गुरु जी प्लीज़ मेरे बेटे ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਜਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੇ 10% कद्दे में देना 90% ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਖਾਣ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਸਭ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਭ ਜੋੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜੋੜ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੜਾ ਤਰਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ। ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਬੁੱਢੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਤੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਆਣ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਣ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ। ਮੇਰਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। बस गुरु जी मैं उज्जैन नहीं करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। रूहानी आंटी जी जय गुरु जी। सारी संगत नूं जय गुरु जी। अज मैं अपना शुकराना सत्संग पेश करदी हाँ।
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਤੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਜੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਰੀਲ ਸੀਗੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੀਨਵਾਈਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਪੌਣੇ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਜਾਈ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਧੂਰ ਦੀ ਡੱਬੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਪਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਧੂਰ ਨਾ ਐਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਧੂਰ ਦੀ ਡੱਬੀ ਆ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਊਟ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸੰਧੂਰ ਦੀ ਡੱਬੀ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਰੱਖਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੁੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੰਧੂਰ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਮੈਂ ਸੰਧੂਰ ਦੀ ਡੱਬੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਏ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਇਕੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। मैं अपना छोटा जिहा सत्संग शेयर ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं संगत जी ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ YouTube ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਥਾਟ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਾਲਕਨੀ 'ਚ ਗਈ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। 2 ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਲ 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 ਉਡਾਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੋਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਨ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਬਲ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਜਾ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਤਿਤਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੰਡਰਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਆਂਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ 5 ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੈਰਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਹੀ, ਔਰਤ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे मालिका। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं इंडिया में थी उस समय की बात है, तो मैंने ऐसे सोचा था कि जब मेरे बेटे का बर्थडे होगा तो मैं गुरु जी का सत्संग कराऊंगी। मेरा बेटा इंडिया से बाहर रहता है, तो लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि स्थान तारीख सब गुरु जी तय करते हैं। तो मेरा प्रोग्राम बेटे के पास आने का बन गया और गुरु जी ने तारीख और स्थान बेटे का घर तय किया था कि इस घर में सत्संग होगा। जय गुरु जी। तो संगत जी, जब मैं इंडिया से आ रही थी ना, तो मैंने गुरु जी का चोला पूरा एक कैबिन लगेज होता है ना, उसमें अच्छे से रख लिया। उसमें कुछ और सामान नहीं रखा। तो लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, या बोलो गुरु जी की मर्ज़ी थी कि ये चोला मेरी फ्रेंड के घर सत्संग होगा, वहाँ जाएगा। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि वो चोला मैं ला नहीं पाई। तो लेकिन यहाँ पर मैंने आने से पहले एक संगत से बात की कि मुझे गुरु जी का चोला मिल जाएगा, वहाँ मुझे गुरु जी का सत्संग कराना है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सब चीज़ें अरेंज हो जाएंगी। जय गुरु जी। संगत जी, जब मैं यहाँ पे आ गई बेटे के पास, तो मैंने उनसे बात करी संगत से, तो उन्होंने गुरु जी का चोला मुझे दे दिया। तो संगत जी, जब मैंने घर आके चोला मतलब बैग खोला, तो उसमें गुरु जी का पूरा संपूर्ण चोला था, लेकिन गुरु जी के जुत्ती नहीं थी, चरण स्वरूप नहीं थे। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान हुई। मैंने कहा अगर मैं उनको बोलूँगी तो बोलेंगे कि आकर ले जाओ या मेरे घर आ जाओ, लेकिन संगत जी इतना डिस्टेंस होता है ना,
तो जाना पॉसिबल नहीं था, बट मन में एक थॉट था कि अब क्या करूं। तो मैंने एक और संगत से बात की जो मेरी फ्रेंड भी थी, तो उसने भी उस सत्संग में आना था। तो उसने बोला कि तू चिंता मत कर, मेरे पास गुरुजी के जुत्ती तो नहीं है लेकिन चरण स्वरूप है। मैंने कहा ठीक है, मैं वो चरण स्वरूप रख लूँगी। लेकिन संगत जी अंदर ही अंदर ना मन बहुत मतलब बेचैन सा, परेशान सा, दिमाग में हर टाइम थॉट होता कि कैसे करूं गुरुजी की जुत्ती अरेंज हो जाए। और मैंने एक संगत से बात भी करी किसी और संगत से अरेंज हो जाए, बट वही कहते हैं ना, गुरुजी की मर्ज़ी हमें नहीं पता थी कि उनकी क्या आगे आने वाली है। तो वो जुत्ती अरेंज नहीं हुई और मेरी फ्रेंड ने कहा मैं चरण स्वरूप ले आऊँगी। उनका ठीक है। तो संगत जी हमने सत्संग का टाइम रखा था 1 से 3 बजे के बीच। सॉरी संगत जी, हमने नहीं रखा था, गुरुजी ने रखवाया था। तो लेकिन नहीं तो ना क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड को मतलब जैसे होता है ना कि गुरुजी थोड़ी ना हमारा वेट करेंगे, हमें गुरुजी का वेट करना होता है ना। तो 1 बजने में 15 मिनट रह गए, तो मैंने उस संगत को फ़ोन किया जो चरण स्वरूप ला रही थी। तो उसने बोला कि मैं अभी घर से निकल रही हूँ। और संगत जी मेरी हालत ख़राब थी। और क्योंकि उसको मैंने बेटे को बताया कि वो इस जगह से आ रही है, तो बेटे ने कहा मम्मा उनको तो 30 मिनट्स लगेंगे। पर संगत जी इस बीच में पता है क्या हुआ, जब मैं काफ़ी परेशान थी ना गुरुजी के चरण स्वरूप और जुत्ती कैसे अरेंज करूं, तो जैसे मैं ऐप खोली मैंने एक, संगत जी मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी का दरबार लगा हुआ था। और लिटरली वो मतलब जहाँ गुरुजी के चरण स्वरूप या जुत्ती रखते हैं वहाँ पर जूम हुआ वो एरिया जिसमें चौकी के ऊपर फूलों को बिछा रखा था और ना जुत्ती थी ना चरण स्वरूप। मतलब गुरुजी का इशारा था कि तू परेशान मत हो, इस तरह भी दरबार लग जाएगा, सज जाएगा दरबार। जय गुरुजी। तो संगत जी क्या हुआ, बेटे ने कहा कि मम्मा उसको तो अभी 25 मिनट लगेंगे और सत्संग शुरू होने में 15 मिनट है। तो मैंने फटाफट उस गुरुजी के चरण स्वरूप की जगह फूलों को बिछा दिया। और मैंने कहा जो गुरुजी की इच्छा, मतलब वो चाहते हैं कि इसी तरह हो तो ऐसे ही होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये जूम करके ये चीज़ दिखाई थी कि ऐसे भी दरबार सज सकता है। तो हमने वो सत्संग शुरू कर दिया। 5 मिनट बाद मेरी फ्रेंड आ गई चरण स्वरूप लेकर, लेकिन सत्संग शुरू हो चुका था। और बेटे ने कहा कि मम्मा अगर वो चरण स्वरूप लाएंगे तो भी आप ऐसे ही रहने देना। मैंने कहा हाँ बेटा, गुरुजी की इच्छा है कि ऐसे ही हो तो ऐसे ही होगा। तो मेरी फ्रेंड ले आई, लेकिन हमने वो चरण स्वरूप गुरुजी की आज्ञा मानकर जैसे दरबार सजा था वैसे ही रहने दिया। और संगत जी उसके बाद क्या, हाँ संगत जी एक बात और है, जब हम सत्संग की तैयारी कर रहे थे ना, तो आपको तो पता है यहाँ पे थोड़ी चीज़ें मिलने बाहर थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम एक स्टोर में गए, वहाँ पर ना गेंदे के फूल मिले हमें, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे गुलाब के फूल मिले, एक फूल ही मिल जाए। मतलब मुझे गुरुजी के चरण स्वरूप के वहाँ रखना था, क्योंकि गुरुजी को गुलाब भी पसंद है बहुत। लेकिन वो नहीं मिला उस स्टोर में संगत जी। लेकिन मन में एक थॉट था कि गुलाब होते। तो संगत जी क्या हुआ, सत्संग शुरू हो गया। एक संगत आई बुके लेके गुलाब के फूलों का। जय गुरु जी। मैं संगत जी इतना खुश हुई कि गुरु जी कैसे अपने बच्चों, अपनी संगत, अपने बच्चों के मन की बात सुन लेते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। मैंने फटाफट वो बुके गुरु जी के दरबार में रखा, फिर माथे से लगा के उठाया और गुलाब के फूल अर्पण करे उनके चरण स्वरूप के पास। उसके बाद संगत जी दूसरी संगत आई, वो भी बुके लेके आई गुलाब के फूलों का।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। तो संगत जी फिर क्या हुआ, जब सत्संग ख़त्म हो गया ना, तो हम अपना अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। तो मैंने उसमें यही बताया कि मेरी बहुत इच्छा थी कि गुलाब के फूल अर्पित करूं, और गुरुजी ने देखो कैसे अरेंज करा दिए हैं। तो जो दूसरी संगत लेके आई थी ना, तो उसने बोला कि जब मैंने ना फूल लिए वहाँ से, तो वो गुलाब के नहीं थे, वो कोई और फूल थे। तो मैं ना जब बिलिंग कराने पहुँची ना, तो मैंने कहा गुलाब के फूल ले लेती हूँ। तो मैंने फिर गुलाब के उठाए। मैंने कहा ये तूने नहीं सोचा, ये गुरुजी ने दिमाग में डाला कि गुलाब के फूल मेरी बच्ची को चाहिए। तो संगत जी लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। वैसे तो कल भी नहीं कर पाई हूँ, पर समय के हिसाब से गुरु जी आगाह करते रहते हैं। कुछ अच्छे मैसेजेस, कुछ बुरे बुरे नहीं कहूँगी, बट हाँ उनमें थोड़ी सी पढ़ने के बाद थोड़ी सी शरारत मन में आ जाती है कि शायद ये होगा या नहीं होगा। गुरुजी ने दिया है तो ज़रूर कोई ना कोई बात है, चाहे हमें अंदाज़ा हो या ना हो। आज भी ऐसा ही कुछ गुरुजी ने मैसेज दिया कि बेटी तुझे नहीं पता, सत्संग सुनवा कर तेरे कितने कष्ट काटता हूँ, अनदेखा ना किया कर। संगत जी मैं बहुत बारी जब 1-1.5 घंटे का सत्संग होता है, कोशिश करती हूँ जल्दी से सुन लूँ स्पीड बढ़ा के काम करते करते, लेकिन कई बार नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, दूसरा मैसेज ज़्यादा अर्जेंट है, और मन में भी अगर वही भाव आ रहा है तो उसी को सुनना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो ये तो गुरुजी की कृपा है, जो भाव डालते हैं, जो हमारे मन में ख्याल आता है वो ही बताते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है हमारे मन में। और अगर हमारे मन की बात नहीं होती है तो हम उस सत्संग को छोड़ के किसी और पे चले जाते हैं। ये सोचना कि गुरुजी ने ये ऐसा कहा है, होगा नहीं होगा, पर विश्वास पूरा होता है, क्योंकि गुरुजी जो भी मैसेज देते हैं वो पहले से ही वो कष्ट कटवा चुके होते हैं। और ये बात मैंने भी नोट की है, इनफैक्ट सारी संगत ने नोट की होगी ये चीज़। आज ऐसा ही कुछ मैसेज था बार बार जो मैं पढ़ रही थी कि मैं आखिरी बार बात कर रहा हूँ, तो अगर अच्छे से नहीं सुनेगी या इस संदेश को, तो देख लेना मैं ब्लेसिंग्स वापस लेकर चला जाऊँगा। अपनी आंखें बंद कर और सत्संग को लगा, मैं तेरी हर परेशानी को तेरी शक्ति से राख बना रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं हेल्थ के लिए स्पेशली, क्योंकि कल शाम से ही घर पे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, और बहुत ज़्यादा किसी को वॉमिटिंग, किसी को हेडेक, किसी को कुछ इस तरीके से लग रहा था। और गुरुजी आज सुबह से बार बार ब्लैक मैजिक के सत्संग कंटिन्यूसली सुनाए जा रहे थे, और मैं भी लगातार सुन रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में मुझे एहसास हो रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है घर पे, इन सबको कोई ना कोई परेशानी आ रही है, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें ब्लैक मैजिक के हिसाब से सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और बहुत बार वो पता नहीं किस औरत की बात करते हैं कि बच्चों पर क्रिया करके तुमसे बदला लेना चाहती है, तो पुत्र को रास्ते का कांटा समझकर उसको कुचलना चाहती है। बहुत सारे मैसेजेस ऐसे थे, पर मैं वो सच में नहीं समझ पाई हूँ कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। बार बार बच्चों के करियर को ख़राब करने की बात, बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनको पढ़कर सच में थोड़ी देर के लिए नेगेटिविटी आ भी रही थी, और विश्वास बहुत है तो इसलिए वो थोड़ी देर के लिए आने के बाद फिर ये सोचती हूँ कि नहीं, गुरुजी जो कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। इनफैक्ट पूरे परिवार के लिए जो कुछ भी हो रहा है, मेरे हिसाब से
जो कुछ भी गुरु करेंगे उनको पता है हमारे भविष्य के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए कुछ सोचना ही बेकार है संगत जी। जो गुरु जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और गुरु जी जानते हैं भविष्य के हिसाब से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बताने वाले भी वही हैं, पालन करने वाले भी वही हैं, और संहार करने वाले भी वही हैं। तो ऐसा सोचना ही बेकार है। बिना वजह टेंशन करना, ये सब चीज़ें हमारे लिए सांसारिक विषयों के हिसाब से आ जाती हैं, क्योंकि हम लोग इतने उस हिसाब से क्या कहें अपने आप में इतने पवित्र या इतने सोच वाले नहीं हैं गुरुजी के हिसाब से कि हम ये चीज़ें भविष्य के हिसाब से देख सकें। हाँ, कई बार सपनों के थ्रू जो कष्ट कटवाते हैं गुरुजी, वो भी हमें शायद पूरे याद नहीं रहते। मुझे तो मुश्किल से 1 या 2 चीज़ें याद रह जाती हैं। अगर 5-10 मिनट का भी कुछ नींद टूट रही है, बीच में बार बार कुछ देख रही हूँ या फिर डर रही हूँ या कोई ऐसी बात आ रही है मन में, तो वो भले ही हमारा ख्याल क्यों ना हो, हम उसको सपने के तौर पर देखकर हम सोचते हैं कि ये चीज़ हुई थी वहाँ पर। और ये गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने कौन सा कष्ट कटवाया था, कौन सा नहीं कटवाया था। और हर चीज़ देने वाले भी वो हैं और लेने वाले भी वो हैं। तो डरना किस बात का और टेंशन किस बात की संगत जी। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, अच्छे से खा रही हूँ, रहने के लिए जगह है, खाने के लिए सब कुछ है। जो मन कर रहा है अपने हिसाब से, और जो गुरुजी भाव डाल रहे हैं नेचुरली है कि हम वही काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। जो भी लाइफ है, जो कुछ भी आपने दिया है बहुत अच्छा दिया है। मैं अगर अभी जुड़ी हूँ वो बात अलग है, लेकिन उससे पहले भी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उन सब में भी मुझे सच में हमेशा उनकी कृपा रही है। कितने दुख आए, कितने दुख चले गए, कितने कष्ट उन्होंने कटवाए और कितने अभी रहने बाकी हैं, किस हिसाब से ज़िंदगी चली, वो सब उन्हीं का आसरा था, जिसकी वजह से हम आज तक ज़िंदा हैं और ये सब देख पा रहे हैं और सब कार्य अपने हिसाब से कर भी पा रहे हैं। तो गुरुजी आपका कोटि कोटि आपको प्रणाम, लख लख वारी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, देने की बात जब भी आती है तो हम लोग डरते हैं, लेकिन गुरुजी नहीं सोचते। गुरुजी बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं, सबको करते हैं। इनफैक्ट मैं अकेली नहीं हूँ, सारी संगत का ही यही भाव होगा। पर एक बार मैं आज नेट में कुछ देख रही थी तो अचानक से एक दोहा था रहीमदास जी का, मुझे अच्छा लगा, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देनदार को और है भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पे धरें याते नीचे नैन। रहीम कवि के साथ साथ बड़े दानी भी थे। एक बार कवि गंग ने रहीम से पूछा, रहीम आपकी आंखें दान देते समय झुकी क्यों रहती हैं, जबकि दान दाताओं की नज़रें तो गर्व से उठी रहती हैं। तो रहीम ने इस दोहे में उनका जवाब दिया कि हम कहाँ किसी को कुछ देते हैं, देने वाला तो कोई और ही है, जो दिन रात भेजता रहता है इन हाथों से दिलाने के लिए। लोगों को व्यर्थ ही भ्रम हो गया है कि रहीम दान देता है। मेरे नेत्र, मेरी आँखें इसलिए नीचे को झुकी रहती हैं कि मांगने वाले को ये ना लगे कि उसे कौन दे रहा है, या दान लेकर उसे दीनता का एहसास ना हो। कितनी अच्छी बात रहीम जी ने बोली है कि मैं अपनी आंखें झुका कर रखता हूँ कि सामने जो ले रहा है मेरे से दान, उसको ना एहसास हो अपनी दीनता का, अपनी गरीबी का, अपने किसी भी दर्द का। तो संगत जी, सच में करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। हम कितनी बार ब्लेस होते हैं गुरु जी से, पल पल में ब्लेस होते हैं। हमारा एक एक क्षण, एक एक सांस लेना भी अगर है तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से। हम परमात्मा को जितना याद करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा परमात्मा हमें देते हैं। गुरु जी आपका लख लख वारी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। हर बार जो भी मन में बात आती है बस यही आती है कि हमारा शुक्राना बहुत छोटा शब्द है। हमें नहीं समझ में आता कि हम किस तरीके से शुक्राना करें। हर तरीके से हमें ब्लेस करने का शुक्राना, हमें सुरक्षित रखने का शुक्राना, और हर तरीके की बुरी नज़र से बचाने का शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना।
जितनी परेशानी कल संगत जी मैंने देखी है, पूरी रात भर ये ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या ही होने वाला है हमारे पास। बच्चों को परेशानी, सबको अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इतनी ज़्यादा हो रहा था कि वो अनबियरेबल था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो चीज़ कम होने लगी, किसी को पेट का दर्द, किसी को सिर दर्द, किसी को वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा, तो वो चीज़ें जिस हिसाब से चल रही थी मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि अब इसे आधे पौने घंटे में इतना फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन मन ही मन पूरा विश्वास है, और मैं बार बार एक ही बात मन में सोचती हूँ कि गुरुजी जो भी कर रहे हैं उनको पता है, वो सब अच्छे से करेंगे। जो भी कर रहे हैं, जो भी कष्ट कटवा रहे हैं, चाहे मेरा हो चाहे किसी और का हो परिवार में, वो इस तरीके से छोटे में कटवा रहे हैं। शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट था। आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी थी इसमें, कभी कबूतर के रूप में, कभी वाइट कबूतर के रूप में। शाम को भी 2 पेयर थे कबूतरों के जो गैलरी में बैठे हुए थे, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी उनको देख के। ऐसे लग रहा था जैसे वो सच में हमारी तरफ देख रहे हैं और बहुत देर तक बैठे रहे। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अपनी प्रेजेंस का एहसास कराने का और हमें हर कष्ट से बचाने का। संगत जी आज जिस तरीके से भी हेल्थ को उन्होंने ब्लेस किया है, और अब सही सलामत आराम से अच्छे से बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, सब स्वस्थ फील कर रहे हैं, पहले से बेटर हैं। तो किसी भी परेशानी में कभी एहसास नहीं होता हमें। अभी पहले की बात बिल्कुल अलग थी इससे। हम बहुत परेशान होते थे, भागते थे इधर से उधर, कभी डॉक्टरों के पास, कभी कहाँ, कभी कुछ ऐसे ही लगा रहता था। लेकिन गुरुजी की कृपा से बहुत चेंज आया है लाइफ में, और सच में कई बार एहसास नहीं होता कि गुरुजी क्या करवा रहे हैं और क्या करवाना चाहते हैं। बस हम करते जाते हैं जो भी भाव डालते हैं, और हम नहीं सोच लगाते, हम नहीं इतना परेशान होते कि अगर कोई हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन उसके बाद गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, अपना विश्वास जो है गुरुजी पर अटूट समझकर रखिए संगत जी, क्योंकि वो जो भी करते हैं पल भर में सब कष्टों को दूर करके, चाहे वो कैसा भी हो, बड़े से बड़ा कष्ट भी उनके सामने कुछ नहीं है, बड़े से बड़ी परेशानी उनके सामने कुछ नहीं है। मेरा गुरु उन सब से बड़ा है। गुरुजी बस आपकी आज्ञा अनुसार जो कुछ भी आप सेवाएं दे रहे हैं आप देते रहिए और हमें राह दिखाते जाइए। और संगत जी बस इसी के साथ ही आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना।